Good afternoon, everyone. I welcome you in today's class. Today I am going to teach you English. The topic is lesson 7, packing, and this is part 3 of the lesson, and I am going to teach you from Beehive today. So I will move on to the first slide. So packing, as the name suggests, you are very much aware about this lesson, what this lesson suggests. This lesson suggests about a trip in which the narrator, Jerome along with his two friends, George and Harris, they are planning to go for a trip, and for which one day in advance they are doing the packing. And while doing the packing, we see that Jerome, the narrator, wants to boss the job, but he finds what he thinks he has to do the opposite of that, because his friends George and Harris, they think that Jerome is going to pack the things, because Jerome takes the responsibility, to leave the responsibility entirely to him. But in other words, he wanted to boss the job. He wanted to supervise Harris and George, who would be packing. But instead of them, he had to pack the things for the trip. And these two friends of his, George and Harris, they sit in front of him on a sofa and on a chair, and they just entertain. They just make a mockery of the narrator, and the narrator anyhow packs the thing. And after that, what happens? His friend Harris, he only recommends that Jerome had forgotten to pack the other things. Which were those things? Do you remember? Vegetables and all those things. Okay. So again, there was a confusion. There starts a confusion, and then George and Harris entirely takes the job of packing on their shoulder. And what happens next, we will see in the slide. Okay. Actually, they had forgotten to, Jerome had forgotten to put the hampers in which the fruits and vegetables will be kept. Okay. That is actually, hampers means baskets. Clear? So they began in a light-hearted spirit. Who? George and Harris. They began in a light-hearted spirit. Light-hearted spirit मतलब मन से नहीं करना, उसको बोलते हैं, कोई कार्य मन से नहीं करने को कहते हैं लाइट हार्टेड स्पिरिट. तो हल्के से, एकदम उसको सीरियसली नहीं लिए, कोई बात को गंभीरता से नहीं लेने को कहा जाता है लाइट हार्टेड. कोई बात बोला कि मैंने कहा तुमको कि इसको गंभीरता से सोचना, इसको गौर करना और ये करना, लेकिन तुम इसको गंभीरता से नहीं लिए. यू क्रिएटेड अ मेस. ओके. तो वो लोग जो पैकिंग का शुरुआत किए, लाइट हार्टेड स्पिरिट से शुरू किए, एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, और प्रूफ के साथ, एविडेंटली मतलब प्रूफ के साथ वो लोग दिखाना चाहते थे, इंटेंशनली वो लोग यह दिखाना चाहते थे जेरोम को कि वो लोग किस प्रकार से पैकिंग कर सकते हैं. मतलब उनके मन में थोड़ा सा गुस्सा भी था
देयर वॉज सम सॉर्ट ऑफ रैथ इन देम। ओके, उन लोगों ने मन से स्वीकार नहीं किया था इस कार्य को, पैकिंग का कार्य जो बचा हुआ था, जो चीज बचे हुए थे उसको पैक करना था, अनपैक करके बैग को, तो उसको मन से उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि फूड आइटम्स भी रखने थे, जैम्स वगैरह थे और पाइज थे, वो सब रखने थे, ये सब जेरोम हैड फॉरगॉटन। तो उन लोगों ने न्यूसेंस के साथ, डिस्टर्बेंस के साथ शुरुआत किया। ठीक है, आई मेड नो कमेंट, और इन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। द नरेटर जेरम डिड नॉट कमेंट ऑन देम। I only waited. Jerome was only waiting how they are doing the packing. वो सिर्फ वेट कर रहे थे। With the exception of George, Harris is the worst packer in this world. नरेटर कहते हैं कि अगर जॉर्ज को हटा दिया जाए वहां से, उस ग्रुप से हटा दिया जाए, तो हैरिस जो है विश्व का सबसे बेकार पैकिंग करने वाला व्यक्ति है, बेकार पैकर है। मतलब उसको बिल्कुल पैकिंग नहीं आता है, बैग वगैरह कैसे पैक किया जाता है, कौन सामान कहाँ रखा जाता है, उसको बिल्कुल नहीं आता है। किसको? हैरिस को। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. and felt that the thing would soon become exciting. तो क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? ये सिर्फ इंतजार कर रहे थे और हैरिस के बारे में सोच रहे थे। नरेटर सोच रहे थे कि हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड, और उसके बाद यह सोचते हुए ये पाइल्स ऑफ प्लेट्स, मतलब प्लेट्स के ढेर लगे हुए थे। ठीक है, पाइल्स ऑफ प्लेट्स का मतलब प्लेट्स के ढेर को बोलते हैं। प्लेट्स के ढेर लगे हुए थे एक के ऊपर एक, और कप्स भी का भी ढेर लगा हुआ था, वो अभी पैक नहीं हुआ था। एंड केटल्स भी थे, एंड बॉटल्स भी थे पानी स्टोर करने के लिए, पानी पीने के लिए, और जार्स भी थे। एंड पाइज का मतलब होता है कुछ ऐसा ही सॉफ्ट फूड होता है, पेस्ट्री होता है ना, पेस्ट्री, इन अदर टर्म्स पेस्ट्री को भी पाइज कह सकते हैं। ठीक है, पेस्ट्री होता है, पैटीज होता है, दिस कम्स अंडर पाइज ग्रुप। एंड स्टोव्स भी पैक नहीं हुए थे, केक्स भी पैक नहीं हुए थे, टोमेटोज भी पैक्स नहीं हुए थे, एटसेट्रा, और भी कितने सारे सामान थे जो कि जिनका पैकिंग नहीं हुआ था। तो इन सब चीजों को की तरफ जेरोम देखता है। एंड फेल्ट दैट थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, और जेरोम को लगने लगा अब तुरंत ही ये जो पैकिंग जो है ये बहुत ही आनंदमय होने जा रहा है, बहुत मजेदार होने जा रहा है। क्योंकि नरेटर को आभास हो गया कि हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड, और उसके बाद जॉर्ज का नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों जो है दे विल क्रिएट अ मेस मीन्स डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन, कैओस। दे विल क्रिएट अ कैओस। जो चीज जहां पैक करना वहां नहीं करेंगे, ठीक है, जहां नहीं पैक करना वहां वो चीज करेंगे। मतलब सॉफ्ट चीज के ऊपर भारी चीज रख देंगे, कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। मानो टमाटर के ऊपर कोई भारी चीज रख दिया गया 10 किलो का, तो क्या होगा टमाटर का? टमाटर का हाल बुरा हो जाएगा। पाइस के ऊपर रख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? पाइस के ऊपर रख दिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्मैश हो जाएगा पूरा। तो इस प्रकार की काम करने जा रहे थे, तो इनको आभास हो गया, नरेटर को पूरी तरह से आभास हो गया कि अब क्या होने वाला है, असली खेल तो अभी बाकी है पैकिंग का। चलो आगे बढ़ते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्लियर? इट डिड, और ऐसा ही हुआ। इट डिड का मतलब हुआ ऐसा ही हुआ जैसा नरेटर ने सोचा था।
They started with the breaking a cup. उन लोग पैकिंग का शुरुआत कैसे किया? कप को तोड़ते हुए, कप को तोड़ना शुरू कर दिया, जानबूझकर भी तोड़ दे रहे थे गुस्से में। उनको पैकिंग करने का मन नहीं था जॉर्ज और हैरिस को, तो गुस्से में कप को इतना जोर से पटक रहे थे पैकिंग के लिए टूट जा रहा था या फेंक दे रहे थे। That was the first thing they did. पहला चीज उन्होंने शुरुआत किया पैकिंग का, कैसे? By breaking a cup. They did that just to show you what they could do. और इस प्रकार से ये लोग क्यों किया ऐसा? यह दिखाने के लिए कि वो लोग क्या कर सकते हैं, and to get you interested, और दिलचस्प बनाने के लिए किया। इस पैकिंग को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एक्साइटिंग बनाने के लिए किया कि कभी खत्म ही ना हो पैकिंग, ऐसा पैकिंग जो खत्म होने का नाम न ले। तो चीजों को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन लोगों ने कप तोड़ने से शुरुआत किया। पैकिंग का शुरुआत कैसे किया? कप को तोड़ते हुए, पटकते हुए। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. उसके बाद हैरिस क्या किया? स्ट्रॉबेरी जैम था, कितने तरह का जैम होता है, तो ये स्ट्रॉबेरी जैम था, और स्ट्रॉबेरी जैम को कहाँ रख दिया? ऑन टॉप ऑफ ए टोमेटो, टोमेटो को ऊपर रख दिया। स्ट्रॉबेरी बड़ा सा जार था, ठीक है, और वो कुचल गया। क्या कुचल गया? टमाटर, टोमेटो कुचल गया, स्मैश्ड। स्क्वैश्ड का मतलब होता है स्मैश, स्क्विज्ड का मतलब स्मैश्ड, दब गया, कुचल गया। स्क्वैश्ड का मतलब यहां दिया गया स्क्विज्ड। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून। उसके बाद टोमेटो इतना कुचल गया, टोमेटोज, कि उसको स्पून से उठाना पड़ा, स्पून के सहारे उठाना पड़ा उन लोगों को। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड देन इट वाज जॉर्ज's टर्न। अब किसकी बारी थी? हैरिस ने तो ऐसा कर दिया। अब जॉर्ज की बारी आई। अब जॉर्ज क्या करता है देखो। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। Trod on the butter means he stepped on the butter. He put his legs on the butter. बटर जो होता है नरम होता है, सॉफ्ट होता है, मक्खन, उसी के ऊपर वो पैर रख दिया, बटर के ऊपर। कौन? जॉर्ज। गुस्से में काम कर रहा था। गुस्से में जो काम किया जाता है वो कार्य सफल नहीं होता है। उन लोगों का मन था कि जेरम वही पैकिंग करे, और जेरम इनको क्यों सौंपा बाकी की जिम्मेदारी, अधूरा जो कार्य बच गया था। इसलिए वो लोग अफरा तफरी में क्या कर रहा था, इधर उधर का कार्य कर रहा था, जानबूझ के भी थोड़ा सा इंटेंशनली भी कर रहे थे, ठीक है। सो जॉर्ज स्टेप्ड ऑन द बटर। ओके, आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉश्ड देम। और जेरम कुछ नहीं कहा, लेकिन वहां से वो कहाँ गया? एक टेबल के पास, और एक टेबल का एज होता है ना, टेबल के एज पर बैठा। He sat on the edge of the table। ये हुआ, जैसे मानो ये टेबल है तो इसके एज पे बैठा। एंड वॉच्ड देम, और उन लोगों को देखते रहा। कौन? नरेटर। It irritated them more than anything। इससे क्या हुआ कि उनको बहुत गुस्सा आया। I could have said, तो नरेटर कुछ भी कह रहा था उससे पहले कि उनको बहुत गुस्सा आया। ये कुछ कहता अभी नरेटर उन लोगों को, ऐसा जो लोग कार्य कर रहे थे अफरा तफरी में, कार्य को पूरा मेस में क्रिएट कर दे रहे थे, मतलब उधर कंफ्यूजन में इधर का उधर कर दे रहे थे। तो कुछ कहने से पहले ही वो गुस्सा दिखा दे रहे थे। इरिटेटेड देम, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था उन दोनों को, जॉर्ज और हैरिस को। I felt that, यह नरेटर महसूस कर पाए
इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, और वो लोग नर्वस हो जा रहे थे, स्तब्ध हो जा रहे थे, मतलब नर्वसनेस उनमें आ जा रहा था, घबरा जा रहे थे और उत्तेजित भी हो जा रहे थे। एक्साइटेड मतलब उत्तेजित होना। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, और वहां से पे जो सामान रखे हुए, जो चीजें रखे हुए थे उन पर पैर और रख दे रहे थे, कुचल दे रहे थे, कितने सारी चीजों को कुचल दे रहे थे, गुस्से में वो लोग कार्य कर रहे थे पैकिंग का। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और कभी कभी हाँ कुछ चीजों को अपने पीछे रख देते थे और उनको पता नहीं कि वो अपने पीछे रखे हैं, जहां बैठे हैं उनके पीछे रखे हैं, अपने पीछे रखे हैं। ऐसा भी होता था, कभी कभी कोई चीजों पर बैठ भी जाते थे और वो चीज चिपक जाता था उनसे, फूड आइटम्स। एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, कभी कभी इधर का चीज उधर रख देते थे और उनको याद नहीं आता था कहाँ रखे हैं, और जब उनकी जरूरत पड़ती थी तो उनको नहीं मिलते थे वो चीज। एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम, और पाइज को क्या किए, एकदम नीचे में पैक कर दिए, बैग के नीचे। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और उस पे हैवी थिंग्स को रख दिए, केक के ऊपर। केक मानो तुम बर्थडे केक लेके गए और उस पर तुम किसी को कोई चीज को, कोई बर्तन को ही रख दिए भारी भरकम, तो क्या हो जाएगा, कुचल जाएगा, पूरा उसका शेप बदल जाएगा। वैसा ही हुआ था, पाइज के बॉटम पे नीचे में रख, उसके ऊपर हैवी थिंग्स रख दिए। एंड स्मैश द पाइज इन, और पाइज पूरा स्मैश कर दिए, स्क्वीज कर दिए, पाइज को पूरा दब गया, कुचल गया वो पाइज जो थे। ठीक है, पाइज का मतलब याद रखना पेस्ट्री होता है। नेक्स्ट, क्लियर? सो दिस इज द पिक्चर, आई मस्ट शो यू how they are packing the things, how the things are spread. You just see, and the dog Montmorency is also there, also here, and how they are creating a mess. Who is creating a mess? George and Harris. And now Jerome is sitting on the edge of a table. Clear? The picture itself speaks about their behavior, about the nuisance created by them. Clear? They upset salt over everything. सारे चीज पर उन्होंने नमक छिड़क दिया, मतलब सारे कार्य को बर्बाद कर दिया। जो भी कार्य करने थे, पैकिंग को एकदम डिस्टर्बेंस में, क्या उसमें बदल दिया उस सिचुएशन को। ठीक है, इसीलिए कहते हैं, बोलते हैं ना, नमक छिड़क देना, जो कार्य अच्छा होने वाला था वो नहीं हुआ, उसी को बोलते हैं। They upset salt over everything. And as for the बटर, और जो बटर का सवाल था, आई नेवर सॉ 2 men डू मोर विथ 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। और जहां तक बटर का सवाल था, उस मक्खन का, वो बोल रहे हैं ऐसे कभी उन्होंने, नरेटर ने ऐसा कभी नहीं देखा, 2 आदमी ऐसा, दे क्रिएट सच ए मेस, 2 pence वर्थ ऑफ बटर, उसको किस प्रकार का बटर में चेंज कर देते हैं, 2 pence वर्थ ऑफ बटर में तब्दील कर देते हैं। उसका कोई वैल्यू नहीं समझते हैं बटर का वो लोग, उसके दोनों दोस्त। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल। जब जॉर्ज अपना स्लीपर से बटर को निकालता है, स्लीपर अपना चप्पल से दबा दिया था जॉर्ज बटर को, तो फिर बटर को निकालता है वहां से। उसके बाद उस बटर को लोग कहां रखते हैं, केटल में रखते हैं। डू यू नो केटल इन विच टी इज प्रिपेयर्ड, ओके, और केप्ट। इट वुडंट गो इन, और उस केटल का मुंह जो था, द माउथ ऑफ द केटल जो था, इतना छोटा था कि उसमें जा नहीं रही था, जबरदस्ती ये लोग घुसा रहे थे बटर को जबरदस्ती उसके अंदर ठूस रहे थे। एंड वॉट वॉज इन वुडंट कम आउट, और जो चीज अंदर चले जाता था, बहुत सारे चीज को वो लोग जबरदस्ती केटल में घुसा कर रखे, और वो सब चीज केटल से फिर बाहर नहीं आ रहे थे। They did scrape it out at last and put it down on a chair.
उसको फिर वो लोग स्क्रैप इट आउट, उसको किसी प्रकार से निकाला, जोर जबरदस्ती करके निकाला, उसको बोलते स्क्रैप इट आउट एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर। उसको उन चीजों को चेयर पे रखा, केटल में रखा था, केटल से फिर बाहर निकाला, उसको चेयर पे रखा एंड हैरिस सैट ऑन इट। और हैरिस क्या किया, वो जो चीज रखा हुआ था उस पर बैठ गया हैरिस। देखो ये सब नमूना सब। एंड इट स्टक टू हिम एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। तो मानो कि बटर चिपक गया, बटर के ऊपर बैठ गया, हाँ बटर उसका पीछे में चिपक गया, पैंट के पीछे, हाँ वो चेहरे पे रख दिया, उस पर बैठ गया, वो चिपक गया। उसका बाद उसको पता ही नहीं है कि चिपक गया उसके पीछे में, ठीक है। हैरिस को पता नहीं है कि उसके पीछे में बटर चिपक गया है या कोई दूसरा चीज चिपक गया है, कोई स्टिकी आइटम। और वो लोग सारे रूम में खोज रहे हैं, ओवर द ऑल रूम, कहां गया कहां गया, कहां रख दिए, ठीक है। एंड दे क्रिएटेड अ मेस, कंफ्यूजन, कैओस, ओके। See the next slide. I will take my oath. I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. और वो सीट तो खाली हो गई जिस सीट पर वो बटर रखा गया था। सीट पर तो वो तो चेयर था, चेयर खाली हो गया, चेयर पे कुछ नहीं रहा। तो यहाँ जॉर्ज कसम खा रहा है, आई टेक माई ओथ, मैं कसम खा के कह रहा हूं, हाँ, कि मैंने उस एम्प्टी सीट को, एम्प्टी चेयर को देखते हुए कह रहा है, उसके तरफ घुराए हुए नजरों से देखते हुए कह रहा है कि मैंने वहीं पर रखा था। आई स्वेयर, मैं कसम खा के कहता हूं, आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट अगो, सेड हैरिस। और हैरिस बोल रहा है कि मैंने देखा था, खुद ही देखा था, ये अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, हाँ तुम इसको ऐसा किए थे। हैरिस बोला तुमने ऐसा किया था, मैंने अभी भी देखा था। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट। और उसके बाद वो चारों तरफ, रूम के चारों तरफ वो लोग खोजना शुरू कर दिए, कहां गया। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टीयर्ड एट वन अनदर। सारे लोग खोज रहे हैं, इधर उधर इधर उधर खोज रहे हैं, और बीच में रूम के चारों तरफ खोजने के बाद फिर सेंटर में वो लोग मिल रहे हैं, एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। कौन? जॉर्ज और हैरिस एक दूसरे को देख रहे, कहां गया कहां गया। वो बोलता कहां गया, वो बोलता कहां गया, दूसरा बोलता कहां गया, पहला बोलता कहां गया। एक दूसरे को हाँ घुराए हुए नजरों से देख रहे हैं। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। जॉर्ज कहता है कि सबसे विचित्र बात जो है मैं कभी सुना होगा, इसके बारे में शायद ही सुना होगा, वो क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं और कौन सा विचित्र बातों के बारे में जॉर्ज कह रहा है देखा जाए। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। हैरिस कहता है इतना रहस्यपूर्ण कैसे हो गया, सो मिस्टीरियस। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। और उसके बाद जॉर्ज हैरिस का पीछे जाता है और देखता है कि ये हैरिस का पीछे चिपका हुआ है। ओके, जस्ट कीप क्वाइट। व्हाई हियर इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली। और उसके बाद जॉर्ज कहता है क्यों क्यों, क्या बात है, घबराने की क्या बात है। Here it is all the time, ये सारे समय कुर्सी से गायब होने के बाद यहीं रहा, चिपके रहा। He exclaimed, वो चौंकते हुए बोला। Where, cried Harris। फिर हैरिस ऐसे घूमते हुए ऐसे घूम रहा है, ऐसा दोनों घूम रहा है उसके सामने और बोल रहा है कहां है कहां है कहां है। कौन बोल कह रहा है, हैरिस कह रहा है। स्पिनिंग राउंड, वो चक्कर लगाते हुए अपने घूम रहा है गोल गोल, ठीक है। और कह रहा कहां है कहां है। स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। और उसकी तरफ उछलते हुए जॉर्ज बोलता है चुपचाप खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, हिलना नहीं। जॉर्ज चिल्लाया। एंड दे
एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और उसके बाद उसको वहां से निकाला और उसको फिर टी पॉट में डाला. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी मस्ट नो समथिंग अबाउट Montmorency the dog. Montmorency was in it all. Montmorency was in it all. Montmorency कभी कुछ कम नहीं था, वो भी इस न्यूसेंस में शामिल था. इस डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने का मौका देखता था. ये जो कुत्ता था उन लोगों का, मॉन्टमोरेंसी उसका नाम था. ठीक है, शायद जेरोम का कुत्ता होगा. ऑफ कोर्स, बिल्कुल ये बात सही है कि मॉन्टमोरेंसी कुछ कम नहीं था. मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वर्न एट. मॉन्टमोरेंसी का एक बहुत बड़ा उसका महत्वाकांक्षा रहा है कि जब भी कार्य अच्छा हो रहा हो उसमें भी कूद पड़ता था इनोवेशंस क्रिएट करने के लिए. हाँ, जबरदस्ती अपना नाक कहीं भी लगा देता था. ठीक है, तो मॉन्टमोरेंसी का ये इच्छा था, उसकी मन की इच्छा थी कि कहीं भी कूद पड़ना, हाँ, और थप्पड़ भी खाना, दोनों आदत पड़ गया था उसका. इफ ही कैन स्क्वर्म इन एनीवेयर वेयर ही पार्टिकुलरली इज नॉट वांटेड एंड बी ए परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक पीपल मैड एंड हैव. उसके बाद आगे बढ़ेंगे. और उसके मन में यही ख्याल रहता था मॉन्टमोरेंसी का कि कैसे कहीं कूद पड़े कोई कार्य में कैसे विघ्न डाले, कैसे विघ्न उत्पन्न करे. ही कुड स्क्वर्म इन एनीवेयर, कहीं भी वो कूद पड़े कोई कार्य में, बाधा उत्पन्न करे. जहां पर उसकी खास कर जरूरत नहीं थी वहां पर वो चले जाता था. कौन? मॉन्टमोरेंसी द डॉग. एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को पागल कर देता था, वहां के लोगों को एकदम पागल बना देता था. एंड हैव, और क्या बहुत करता था, आगे देखते हैं. बी स्वर्न एट मतलब हियर गेट स्कोल्डेड. हाँ, ही यूज्ड टू गेट स्कोल्डेड. मैं बताया था किस प्रकार उसको मारने भी पड़ते थे लोग, फिर भी अपने आदत से बाज नहीं आता था. ठीक है, नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. सी द पिक्चर हाउ जॉर्ज और हैरिस is hitting the dog, how he wants to create a mess. The dog where he has stepped in, you see in the hampers, सारे चीज, छोटे छोटे चीज और फ्रूट और वेजिटेबल ये सब रखने का जगह है, जैम सोप्स रखने का जगह है, बास्केट है, उसमें कूद पड़ा है वो. ठीक है, और एक मारने को तैयार है उसको. एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड. और मॉन्टमोरेंसी का एक अलग अंदाज रहा है, वो हमेशा सोचा है कि ऐसा कुछ कार्य करूं जो मेरा ऊपर, हाँ, ऐसा करे लोग. हाँ, वैसा कार्य करता है कि उसको ये लोग जो भी यूटेंसिल्स थे वगैरह सब थे उसे फेंक के उसको मार रहे थे सर पे. थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड. देन ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड. तब मॉन्टमोरेंसी कुत्ते को लगता है कि अब उसका दिन बर्बाद नहीं हुआ है, जब तक वो कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का, बाधा डालने का, विघ्न डालने का, तब तक उसका दिन पूरा नहीं हो सकता है, उसका दिन अच्छा नहीं जा सकता है. मॉन्टमोरेंसी का ऐसा इच्छा रहा है, ऐसा आदत रहा है. टू गेट somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. और उसका क्या इच्छा रहा है कि कोई भी आकर इसके ऊपर गिर जाए, मॉन्टमोरेंसी को, स्टम्बल ओवर हिम. टू गेट समबडी स्टम्बल ओवर हिम, कोई व्यक्ति आकर इस पर गिर जाए, पलटी खा जाए. ओके, एंड कर्स हिम स्टेडली फॉर घंटों तक. हाँ, 1 घंटे तक इसको कर्स करते रहे. कर्स करना मतलब अभिशाप देना, बुरा भला कहना, श्राप देना. इसको श्राप देते रहे. ऐसा कुत्ता तो मैंने कभी नहीं देखा. हाँ, ऐसे कुत्ते को तो टांग काट कर बाहर फेंक देना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना गुस्से से. कोई ऐसा, हाँ, डॉग आ जाता है, कोई ऐसा डॉग काटने पड़ता है तो कोई गुस्सा हो जाता है, इस कुत्ते का मैं टांग तोड़ दूंगा, पैर तोड़ दूंगा. तो वैसा ही कर्स सुनने का वो तैयार रहता है कुत्ता.
is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. और जब ऐसा करने में वो सक्षम हो जाता है तो उसका घमंड का कोई बात नहीं, तो बहुत घमंड, उस पर नाज होने लगता है उस कुत्ते को कि मैंने ऐसा किया, ऐसा शो करता कि हमने ऐसा किया, मैंने ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करके आई हैड क्रिएटेड अ मेस ओवर हियर। तो इस प्रकार का ख्याल उसके मन में रहता है। जो चीज मना किया जाएगा वही कार्य करेगा, जहां नहीं जाना वहां जाएगा कि कैसे हम ऐसा करें जो मुझे कोई मारने दौड़े, मेरे ऊपर कोई गिर जाए, मेरे को कोई सामान फेंक कर मारे, ये सब दिमाग में वैसा मॉन्टमोरेंसी के दिमाग में रहता है उस कुत्ते का। और बहुत ही नॉटी डॉग है, नटखट कुत्ता है मॉन्टमोरेंसी। So I have come to the end of today's slide, and I will be coming with more slides in the next class. I will come with part 4 of this lesson. I have just completed part 3. Thank you, my dear students.